God has created all of us in a same way. Then why we are treating it in a different way? A very good evening to everyone. We are living in 21st century. We have reached at Mars, but somewhere in our country, in our society, still we are lacking in some facts regarding gender issues. Today, we are not discussing about any gender discrimination, but still we are discussing about the gender issues in mental health. Because for women, there are some specific mental disorders in a higher increasing rate. For men, also, there are some specific mental disorders in a higher increasing rate. Then why these are occurring in our society? To discuss and know about the roads and its solution, we have in our dice a very special guest from Hyderabad, Dr. Purnima Nagaraj. She is a consultant, psychiatrist, and psychotherapist. She is also a motivational speaker and empowerment coach. She is now heading and directing Dhriti Wellness Center in Hyderabad. Let us welcome ma'am to our dais to discuss about the topic mental health issues and gender. Yeah, gender issues in mental health. Welcome ma'am to our dais. Thank you, Dr. Mandal, and so pleased to be here with you today to discuss my totally favorite topic about how gender affects mental health. Thank you ma'am. First, let us start with some brief view of today's topic. Basically, we are all these days we talk about a binary gender, a male and a female. Today, we have several genders in between, including third gender and the entire spectrum of LGBTQIA. And each of these genders have certain mental illnesses which we need to address and understand. Today, we still say it's a man's world, but the men, do they have it easy? Absolutely not. Because it's hard on the men, being the sole breadwinner of the family. You have to be very strong emotionally. Men don't cry, men are not allowed to cry. And whenever they want to show their emotion, also they'll say, like, तो लड़की जैसे मत रो या नहीं तो चूड़ियां पहन के बैठो. So things like that, you see, can be very, very scary for a man itself. And bottling up the emotions, opens doors to several mental illnesses. Likewise, a woman, lot of caregiving, lot of adjusting, lot of lot of other issues that come in. These are hormonal issues where a woman can be vulnerable to mental health issues. So we call a woman vulnerable to mental health because we consider her the weaker sex. So Weaker or ma'am, stronger, there are definitely some issues that we need to deal with. And of course, the whole entire host of the LGBTQIA, which is between these two binary genders. so why ma'am, why gender is more important in mental health specifically? Mental health has its own boundaries, and certain genders are more vulnerable. For example, they say depression is a woman's disease. Likewise, obsessive compulsive disorder, anxiety, all of these are more common in women, statistically as well as because of their basic role in society. See, women are mothers, sisters, daughters. We work, we have children, we have to take care of our elderly. So the caregiving responsibilities are very high. There is less financial independence. Therefore, there are certain issues which only women get, or women get more than men. Whereas in men, we have, say, bipolar disorder or psychopathy, um, pathological gambling, behavioral disorders, alcoholism and other drug abuse, suicide, all of these things are extremely common in men because of their role in the society and the stress that society
puts on them to be able to carry out this role. So what does it When we talk mean to about, be a, what does it mean to be a woman with mental health issues in our country? it means that a woman is invalidated, abandoned, um, facing divorce, facing a lot of society pointing fingers. As it is, as you know, doctor, there's a huge stigma for mental illness in this country and in the world. Some countries they express it openly, like our countries and other developing countries. In some countries, it's more covert, but the discrimination definitely exists. There are people who lose their jobs. There are people who are invalidated, abandoned. Even children are abandoned. In fact, one day in my clinic, there was a small child who was mentally and intellectually challenged. This child was just left in my clinic in the crowd, and then the parents disappeared. So it took a week for us to find, and it was a girl child also. So you Yeah. see, for a woman, sir, as you know, as it is, you see, there are so many atrocities that women face, and more so if there is mental illness. It can be right from autism spectrum to intellectual disability, all the way up to say major depressive disorder or anxiety. And as you know, all of these things are very visible. We have no blood tests for them, but they are visible. So society immediately starts looking down, invalidates this person, feels that they're no good. Um, they feel that it's a contagious thing, that children will also get it. So the likelihood of seeking divorce, the likelihood of a woman being abandoned, the likelihood of a lot of domestic violence, a lot of sexual abuse, all of these things are so much more. So being a woman with mental illness, particularly in a country of ours where we still have stigma, it's not at all easy, doctor. And being a mental health professional, I'm sure you know that too. You must have come across so many cases like this. Definitely, discrimination and social stigma are the prime key behind it. Yes. So, Yes. if same question, then if same question will arise for men prospect, then how you will describe it? So men don't have it easy either. We call it a man's world, and because we call it a man's world, there is so much stress on a man. He has to be the sole breadwinner. He has to be extremely emotionally strong. He should be the one taking care of the entire family, bearing the burden of his family, his parents, extended family. He must not show any emotions, क्योंकि crying तो वो तो लड़की वाली चीज है. Or he cannot even show happiness because people will take advantage of him. He has to be tough all the time. So this is what we call forced patriarchy. जो manliness जो है किसी के ऊपर force किया जा रहा है. So it comes with its own set of mental illnesses. For example, like I said, schizophrenia is more common in men. Bipolar disorder is more common in men. And while they do get other disorders, psychopathic illnesses, antisocial personalities, violent sexual offenses, addictions, these are all more common in men. Mostly because एक तो they have this idea से मैं मर्द हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ. That is something that society keeps pushing onto. You're a man, you can do anything. And the other thing is, you're a man, you have to do everything. So bearing the burden of the family. So if you've noticed, doctor, I'm sure again in your practice you would have come across suicide. You see, women attempt suicide more, but men commit suicide more. So suicide is a man's disorder. And we've had so many celebrities who committed suicide. I come from Telangana, where even in our film industry there have been so many celebrities, and of course there's been some recent suicides and deaths which are most unfortunate. So it's not like the men have it any easier, because it is an unequal society we live in. It's not an equal society. So it all goes down to this, that it is an unequal society. So women have face their share of inequality, men face their share of inequality, and the genders in between, there is absolutely no life for them at all. Probably we'll come to that a little later. Substance abuse is also one cause for men. Yes, sir. So substance abuse, they say it's more common in men, particularly alcoholism, and things like pathological gambling, other impulse control disorders. So why they do it is one thing, because that need for power. It's that innate need to be powerful, and of course money makes you feel most powerful. The other thing is to escape. Alcoholism is an escape mechanism. Drugs are an escape mechanism. You're just escaping the world you're in, going to a different world where things are slightly better. A lot of people believe that alcohol will make them sleep better or will make them feel better.
But what alcohol does is it gives you only that temporary feeling, and then after some time again you're back to where you were, actually feeling worse because emotionally and financially you're going downhill. Family relationships get upset. The whole society actually starts pointing fingers, and because of that, the personality undergoes a change. People start telling lies, stealing money. They resort to domestic violence whenever they are challenged. So all of these things, you see, it is a symptom complex. It is not like one. And previously, all these days, we thought it was a bad habit. किसी को बुरी आदत लग गई, बुरी सोबत में है, but it's not that. Today we realize and we recognize alcoholism, drug addiction as a disorder of the brain, where there are certain changes in the brain, in alcoholics and in people who abuse drugs. So today we recognize it as a disease process. Ma'am, comparing the both gender, men and women, we are seeing that lots of men come forward to share their mental health problems compared to women. Is there any specific reason behind it? Yes, sir. Because whatever it is, you see, men gain easier acceptance in our society than women. Because for a man, if he said something also, it would be easy for him to get married. It would be easy for him to have a family life. Yeah, There are a exactly. lot of people who have serious mental illnesses, but are married and having children. Whereas if a woman has the same thing, she will never get married. So in our country, what they do is they hide the mental illness and get these girls married. And subsequently, when they come to know, immediately the woman is abandoned, but the man is not abandoned. So this is the That means major again discrimination we see that discrimination. we see. So a woman's duty is to take care of a man, but the reverse is usually not true. It's not a man's duty to take care of a woman. It's a man's choice. So if he likes his wife and he takes care of her, ek to kahenge joru ka gulam hai, but otherwise they will, it is a caring relationship. Otherwise, society will always say, inko nikalo, we will get another one for you, as if relationships are so expendable. So society also has a large role, doctor, in this particular question that you have asked. It's not just man यानी and woman relationship. कहीं ना कहीं It is हम लोग वही society also. सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन में अटक हुए हैं. Huh, सोशल स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन अगेन right. Discrimination and inequality. इनइक्वालिटी या ये बाइनरी जेंडर को छोड़ के आदर्श जो जेंडर है, ट्रांसजेंडर है, लेस्बियन है, गेज है, तो उनका कैसा मेंटल हेल्थ के साथ उनका रिलेशन कैसा है? डॉक्टर साहब, इतने दिन ये तो इट वाज इलीगल, तो लोग छुप छुप के दे यूज्ड टू फॉलो देयर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस. अभी देखिए, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, दुनिया में देखिए 95% ऑफ पीपल यूज देयर राइट हैंड. जो 5%, इनफैक्ट 5% से कम है जो लेफ्टीज हैं. एक जमाने में लेफ्ट हैंडर को बैड लक माना जाता था, अभी हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं. और ये भी देखिए, ये एक सेक्सुअल चॉइस है, ये कोई ना बीमारी है ना कोई साइकेट्रिक इलनेस है, लेकिन इनको बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है एंड दे आर नॉट ट्रीटेड वेल. इनके कभी लॉज नहीं थे प्रोटेक्टिंग देम. अभी देखिए वी हैव लॉज, द नलसा एक्ट केम इन, उसके बाद जो ट्रांसजेंडर एक्ट जो है, इट गिव्स some level of support. Transgender act से नलसा act was better, but अभी भी वो तो लड़ाई जारी रहेगी, wherein we will not employ somebody because of their sexual choice. कोई ट्रांसजेंडर हो या नहीं तो कोई लेस्बियन हो या कोई गे हो, अगर मालूम होते उनको बड़े से बड़े जॉब से निकाला जाता है, although there are laws that protect the jobs. So the mental illness in such people is much higher. They are more prone to depression, self-harm, alcoholism or drug abuse. They're more prone to violence. So all of these things you see can cause severe mental illness. Again, जैसे आपने कहा है, the discrimination is so much more, and we are still so homophobic as we call it. तो लोग डरते हैं ऐसे लोगों से, and most of the transgenders आपने देखा होगा, see they don't get jobs. Very few of them, one becomes an MLA, one becomes a teacher. लेकिन काफी लोग जो हैं, they are either into commercial sex or they're into begging because there is no other job available to them. So you see, and ना medical help मिलती है, ना emotional help मिलती है, mental health support तो बहुत दूर की बात है. Even for ordinary physical ailments, most of them are ostracized and they are not given the kind of help they deserve. Ma'am, kindly tell us what is health-seeking behavior and how can it affect our mental health?
हेल्थ सीकिंग बिहेवियर डॉक्टर साहब, जो अगर आपको सर में तकलीफ है डॉक्टर साहब, तो आप जाओगे डॉक्टर के पास बिकॉज यू आर सीकिंग हेल्थ। तो इसी को हेल्थ सीकिंग बिहेवियर कहते हैं डॉक्टर साहब। और इसमें क्या होता है कि particularly in mental health, men will not seek help क्योंकि they are not considered perfect। तो ये जो perfection का जो भूत चढ़ा हुआ रहता है and society keeps pushing it, they don't seek medical help। Women are financially backward, they are not given financial independence or even independence to choose, so they will not be sent for help, उनको permission लेना पड़ता है। and if the husband decides कि भाई नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा और किसी और के पास पैसे नहीं है, so they will not get the help। So women, though they declare their mental symptoms more, particularly neurotic illness, aches and pains, headaches, rheumatizations, such things they will declare more, but they get less help। Men actually are in a position to get much better help because the acceptance is much more in a man, but particularly in the districts and in the semi-urban areas and in rural areas, they are so afraid that they will not be considered strong, capable men that they don't take help। So health seeking behavior दोनों में देखिए गड़बड़ है। Women, though they are vocal, they don't get it। Men should get it and will get it, but they are not vocal। तो क्या 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 प्रोसेस या क्या क्या टिप्स आपकी रहेगी कि हेल्थ सीकिंग बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं हम? सर एक तो जैसे कि आपका जो कैंपेन है अवेयरनेस, अगर अवेयरनेस अच्छी है तो देखिए पीपल विल डेफिनेटली स्टार्ट सीकिंग हेल्प। और प्राइमरी केयर में देखिए जो हमारे विलेजेस में जो प्राइमरी केयर हॉस्पिटल्स, जो गवर्नमेंट छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं, वहां पर देखिए मेंटल हेल्थ की चर्चा होनी चाहिए। लाइक वी हैव आशा वर्कर्स, वी हैव आंगनवाड़ी वर्कर्स, वी हैव सो मेनी, वी हैव चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, जो देखिए सारे इंडिया में फैले हुए हैं। दे हैव नो नॉलेज ऑफ मेंटल हेल्थ। सो अगर कोई बच्चा भी हो, दे आर शोइंग सम सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म, या नहीं तो मेंटल रिटार्डेशन, या नहीं तो कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम हो, अगर ये लोग पहचान सके, particularly आशा वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी, when they go into the women's issues। एंड ज्यादातर देखिए दुनिया में, दिस इज नॉट ओनली इन इंडिया डॉक्टर साहब, सारी दुनिया में देखिए द फोकस इज ऑन मैटरनल हेल्थ, कि बच्चा और जच्चा दोनों ठीक रहे। बट बच्चा और जच्चा ठीक रहने के लिए दिमाग भी ठीक रहना चाहिए। एंड इफ दे आर एट पीस, अगर कोई एंजाइटी हो या पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो या पोस्टमार्टम एंजाइटी या पोस्टमार्टम साइकोसिस भी हो, तो दे डोंट गेट हेल्प। तो दिस इज मोस्टली इन आवर कंट्री डॉक्टर साहब बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर हमने अवेयरनेस बढ़ाई तो डेफिनेटली डॉक्टर साहब इट विल रीच द पीपल, एंड स्टिग्मा भी हम कम कर सकते थे। जैसे शारीरिक बीमारी है, ये तो मानसिक बीमारी है, इट्स नथिंग ग्रेट। हम सर को अलग निकाल के रात में कबर्ड में रख के सोते तो नहीं है ना सर जी, इट्स अटैच टू अस। सो जैसे अगर कोई दिल में दर्द हो तो अगर आप भाग रहे हैं डॉक्टर के पास, ऐसे ही अगर आपको दिल में कोई डिप्रेशन हो या नहीं तो आप दिमाग में कुछ ऐसी वैसी एबनॉर्मल सोच आ रही है, तो आपको भागना चाहिए डॉक्टर के पास, और इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपने बहुत बड़ी अच्छी बात रेज की कि अगर एक पुरुष को डिप्रेशन होता है तो वो शादी कर सकता है, नॉर्मल लाइफ जी सकता है, लेकिन अगर लड़की को डिप्रेशन आती है और सोसाइटी को पता चल जाता है तो उसका शादी होना या नॉर्मल लाइफ जीना मुश्किल हो जाता है। ये डिस्क्रिमिनेशन को हटाना है क्योंकि ये एक बीमारी है, उसको समझना पड़ेगा हमारा सोसाइटी को, और गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेना चाहिए। क्योंकि मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि इंडिया में कहीं ना कहीं हम बहुत सारे मेंटल हेल्थ की जो फील्ड है उसमें बहुत सारे लैक्स हमारे पास है, जो कि बार बार क्वेश्चन एराइज हो रहा है। इस बार जो लोकसभा में भी एराइज हुआ था, जो कि गवर्नमेंट के पास जो कंट्री में लगभग 20 करोड़ पीपल अफेक्टेड विथ मेंटल हेल्थ इश्यूज, उस कंट्री के गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं है, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा हुआ था। डाटा एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि हाउ मच पीपल आर सफरिंग और व्हाट आर द एक्सपेंस कॉस्ट बियर बाय द गवर्नमेंट सिस्टम। तो कहीं ना कहीं हम लोग लैक हो रहे हैं, ये एक बड़ा रीजन हो सकता है। बिल्कुल सर जी, क्योंकि देखिए जो फोकस है ज्यादातर देखिए इन मेन इट इज अबाउट ऑर्थोपेडिक इश्यूज, या नहीं तो कैंसर्स, स्मोकिंग, एडिक्शंस पे देखिए फोकस है, एंड इवन ऑन एड्स एंड अदर सेक्सुअली ट्रांसमिसिबल डिजीजेस। वैसे ही लेडीज में देखिए, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है, you will see a lot of maternal issues, maternal health issues, childbirth issues। इस पे फोकस ज्यादा है, तो उस पे फोकस होनी चाहिए जरूर, लेकिन उसके साथ साथ one must recognize के there are mental health issues, and इस पर देखिए ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि देखिए
मेंटल डिसऑर्डर्स ऐसे हैं डॉक्टर साहब, आपको ऑलरेडी पता है, आप खुद एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं, कि देखिए हाथ पैर सब एकदम नॉर्मल लगते हैं, लेकिन देखिए इतना देखिए इट इज लाइक अ मेंटल पैरालिसिस, ना उठ सकते हैं, ना दांत साफ कर सकते हैं, ना खा सकते हैं। और ज्यादातर देखिए यू गेट ऑल काइंड्स ऑफ एडवाइस कि आप ट्राई नहीं कर रहे हो, आप यू गो हेड एंड उठो जाओ, ये करो वो करो। सो आई ऑलवेज से दिस, इफ दे कुड दे वुड, अगर हो सकता तो जरूर करेंगे, अब हो नहीं पा रहा है। और ये चीज देखिए बिकॉज दे आर इनविजिबल, वो समझ नहीं पाता कोई। देर इज नो ब्लड टेस्ट फॉर इट, आपको पता है ऑलरेडी मैं बस रिपीट कर रही हूँ। इसका कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, बस साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है, लेकिन वो भी देखिए कभी गलत हो सकता है। सो वी डोंट हैव Definitely. एग्जैक्ट वेज ऑफ फाइंडिंग आउट, इसीलिए इसके ऊपर देखिए ध्यान कम दिया जाता है। एंड अगर किसी ने कहा भी तो इट इज वेरी स्ट्रिंजेंट एक्शन, सारी लाइफ देखिए जीरो हो जाती है, एंड इसलिए लोग कहते नहीं है। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी मेरे पास आए हैं कि उनको मान लीजिए कोई एंजाइटी है या डिप्रेशन है, तो उन लोग को रेकमेंड ये किया गया है कि एमआरआई कर लीजिए। तो मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि सर कौन सी टेस्ट करवाए ये सारे चीज के लिए। दुनिया में ऐसा कोई टेस्ट तो होता नहीं है, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि ब्लड टेस्ट नहीं, कोई डिवाइस भी नहीं है पकड़ने में। और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग आपने जो बात उठाई है, हम लोग जब साइकोलॉजी फील्ड में रिसर्च कर रहे थे तो ये बात हमारा प्रोफेसर लोग को पूछे थे कि मान लीजिए हम लोग को डिप्रेशन के लिए एक चार्ट दिया गया, अगर उस समय हम जानबूझ के कुछ क्वेरीज को उसी तरह अगर क्लिक करते हैं भी, तो वो स्केल में हम लोग को दिखा देगा कि ये डिप्रेशन में है, लेकिन सही राइट, सलामत है। तो इसको कैसे हम लोग की ये मान सकते हैं कि 100% सही रहेगा? क्योंकि जो बंदा को आप वहीं पे टेस्ट करवाएंगे उसी मोमेंट पे, उसका माइंडसेट क्या रहेगा, 2 दिन के बाद उसी टेस्ट को अगर डालेंगे तो डेफिनेटली स्केल में रेटिंग हाई हो सकता है या लो हो सकता है, इसका पॉसिबिलिटीज भी है। तो ये सिर्फ जी, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे उसको डायग्नोसिस कर रहा है, उसको कैसे सुन रहा है, उसको कैसे उसको जज कर रहा है। ये एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के ऊपर फुली डिपेंड करता है कि वो कैसा डायरेक्शन में उसको ले रहा है। ये सही है मैम? 100% सही है सर जी। और ऐसे टेस्ट में देखिए लोग झूठ भी बोल सकते हैं, या नहीं तो आज फर्ज कीजिए मेरा मूड खराब है, मैंने घर में मेरा कोई झगड़ा हो गया मेरे पति के साथ, तो मैं जब भी मैं स्कोर करूंगी तो बहुत हाई स्कोर दूंगी, तो उसमें देखिए डिप्रेशन का नतीजा निकल जाता है। और अगर मेरा मूड बिल्कुल अच्छा है, मेरे मुझे प्रमोशन मिल गया ऑफिस में, तो मैं अगर है भी तो मैं कम स्कोर डालूंगी क्योंकि आज मेरा मूड अच्छा है। सो देखिए दिस इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। इसीलिए इन साइकोलॉजी वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव Yeah. टेस्ट दे आर जैसे थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, रोशाक, ऐसे टेस्ट जो पिक्चर्स के जरिए, ड्राइंग्स के जरिए हम लोग उसके इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। देर आर ऑल्सो नॉट 100% जैसे इनफैल्यूबल तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इट गिव सम लाइट। लेकिन सबसे ज्यादा सर आप अगेन आप इससे ज्यादा जानते हैं कि जितना आप टाइम बिताओगे पेशेंट्स के साथ, उतना देखिए वी कैन एक तो डायग्नोसिस में काम आएगा, और बाद में देखिए उनको दिलासा देने में भी काम आएगा, क्योंकि वी हैव टू स्पेंड टाइम। ये प्रोफेशन ऐसा है जैसे कि हम एक दिन में 100 पेशेंट 200 पेशेंट जैसे नहीं। फिजिशियंस देखते हैं, हम देख नहीं पाते। 15-20 पेशेंट देख लिया तो बहुत है, और वो तो 12-15 घंटे हो जाते हैं। बिकॉज इफ यू गिव टाइम टू द पेशेंट, आप उनको जरूर हेल्प कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ बात करने से, कभी कभी जब उनको दिलासा मिलता है, दे यू कैन एक्चुअली अवॉइड एक्सट्रीम एक्शंस लाइक सुसाइड और सेल्फ हार्म। आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि आप उनको अपने सबसे कीमती चीज, आपका समय आपने दिया है। मैम मीडिया या सोशल मीडिया या मूवीज, ये सारे चीज का जो इफेक्ट है, जो इम्पैक्ट है, वो कैसा है मेंटल हेल्थ के साथ आप जुड़ रहे हैं? सर सोशल मीडिया इज, हम लोग हैं, आम जनता हम लोग हैं सोशल मीडिया में, जो एक्चुअली एंटरटेनमेंट के लिए बैठते हैं, या नहीं तो कभी कभी ट्रोल करने बैठते हैं। थोड़े लोगों तक का तो एक ही काम है, ट्रोल करना किसी को। उनका देखिए अगर एटीट्यूड गलत एटीट्यूड है, जैसे कि देखिए आपका जो ब्लू वेल गेम था, वो कोई गेम ही नहीं था, वो बहुत ही खतरनाक एक डाउनलोड था। एंड इसने बनाया एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल में रशिया में। और उसका देखिए हिज माइंड वाज कि भाई कोई भी वल्नरेबल पर्सन को जीने का हक नहीं है, तो उनको निकाल दो, जैसे कि वर्ल्ड को हम साफ करेंगे। देखिए सच एन एबनॉर्मल थॉट, वो खुद एबनॉर्मल था।
Okay, so the thing is world is full of such people. एक लड़के ने थोड़े 2-3 साल पहले या ज्यादा साल पहले उन्होंने अपने सुसाइड को लाइव स्ट्रीम किया था। कितने लोग देखा है, लेकिन एक भी 9/11 को फॉलो नहीं किया, क्योंकि वो मजा आ रहा है। तो हाल-हाल में देखिए सोशल मीडिया इज़ अ वेरी डेंजरस टूल। उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है तो इट्स फन एंड इट्स वेरी अपलिफ्टिंग। लेकिन अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, सो यू सी इट कैन बी वेरी हार्टलेस, बहुत ही क्रूअल एंड हार्टलेस जगह है। तो दिल थाम के बैठना चाहिए व्हेन यू आर सिटिंग ऑन सोशल मीडिया। अब मीडिया की बात कर रहे हैं, जैसे कि प्रिंट मीडिया एंड टेलीविजन मीडिया, रेडियो, इसको देखिए आई आई एब्सोल्युटली क्लैप फॉर देम, क्योंकि दे हैव टेकन अप मेंटल हेल्थ इन अ वेरी बिग वे। हमारे स्टेट में जो तेलंगाना और एक जमाने में आंध्र एंड तेलंगाना जुड़े हुए थे, right from the vernacular newspapers to the English newspapers, they take up mental health issues, they take quotes from doctors, discuss things with doctors. वैसे ही देखिए there are so many women based show for women for mental health, and there are a lot of discussion जब कोई ऐसी चीज हो जाती है तो a lot of discussions, so that there's a lot of public knowledge. So print media and television media तो बहुत they're helping a lot. अब देखिए फिल्म्स की बात है, फिल्म्स को तो they have in some places they have shown very beautifully mental illness, and बहुत ही beautiful films निकाले हैं। और थोड़े फिल्म्स तो for sensationalism बस ऐसे बताते हैं कि पेशेंट अपने कपड़े फाड़ रहे हैं या नहीं तो फूल पहने हुए डांस कर रहे हैं, which is really not the picture. So गलत पिक्चर लोगों में फैला जाता है। But they see that is a film, that's a different media altogether, and I don't want to get into that because there are some fantastic films in all languages around the world. But वैसे ही थोड़े फिल्म्स हैं जिसमें थोड़ा सेंसेशनलिज्म बताए जाते हैं। The other thing is जो आपने in your question एक चीज मैं आपको ऐड करती हूँ, what is it that social responsibility, हमारी जो we are हमारी सोसाइटी में देखिए क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी को सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं, या नहीं तो किसी को हम रियल लाइफ में देखिए जॉब से निकाल रहे हैं। सो डोंट वी हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये क्वेश्चन देखिए हम सब जो आज सुन रहे हैं और जो मेंटल हेल्थ के बारे में इंटरेस्टेड हैं, उनको देखिए मैं विनती करती हूँ कि वो प्लीज रीड अप अबाउट मेंटल हेल्थ एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट द अदर पर्सन इज गोइंग थ्रू। हम सब की देखिए ये जिम्मेदारी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक दूसरे को don't pull them down but hold them up. मैम स्पेशली जो मैं सोसाइटी में एक चीज और ऑब्जर्व किया हूँ कि आपके जो चिल्ड्रन होते हैं वो ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन का शिकार शायद होते हैं, ये मेरे को पर्सनली लगता है। जो कि गर्ल चाइल्ड को तो ये तो बहुत सारा कैंपेन चला रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि या स्टेट गवर्नमेंट, इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट्स ने कि जो सेव योर गर्ल चाइल्ड, बट स्टिल वी आर लैकिंग बिहाइंड इट। आप जितना भी बैनर कीजिए, जितना भी पोस्टर कीजिए, कहीं ना कहीं हम गर्ल चाइल्ड को अनदेखा कर रहे हैं और एबॉर्ट भी कर रहे हैं। इतना क्राइम्स, इतना रूल्स होने के बाद भी क्राइम्स हो रहा है। तो चिल्ड्रन लोग को कैसा मेंटल हेल्थ इफेक्ट कर रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या, एक दो लाइन हम डिस्कशन कर सकते हैं? सर एक तो देखिए सर, सबसे बड़ी चीज जो है पढ़ाई का स्ट्रेस। बच्चों को देखिए 8, 9, 10, 11, 12 देखिए इट इज ट्रॉमा। वो कोई पढ़ाई नहीं होती है, वो बस ट्रॉमा है। पेरेंट्स की देखिए प्रेशर होती है, इंस्टीट्यूशन से प्रेशर होती है, और उनको मार्क्स लाने की प्रेशर, उसके बाद प्रोफेशनल कॉलेज में जाने की प्रेशर होती है। तो देखिए मैक्सिमम सुसाइड्स जो होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन इंडिया, बिटवीन द एजेस ऑफ 15 एंड 19। ये देखिए यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा डिप्रेशन का मात्रा होता है, सबसे ज्यादा एंग्जाइटी का मात्रा होता है, एंड सेल्फ हार्म, ड्रग एडिक्शन, एंड ऑफ कोर्स सुसाइडल अटेम्प्ट्स एंड सिवियर डिप्रेशन। ये देखिए इनका मात्रा ये उम्र में देखिए सबसे ज्यादा है, not only in this country but just let us talk only about our country. तो फर्स्ट सबसे बड़ी चीज है स्टडी स्ट्रेस। दूसरी बात ये है कि सिर्फ द फैमिली, पहले एक जमाना था कि जॉइंट फैमिलीज था, कोई ना तो कोई रहते थे बात करने के लिए। अभी देखिए इट्स न्यूक्लियर फैमिली। जो सोसाइटी इज चेंजिंग, मैं उसके ना अच्छा बोलती हूँ ना बुरा बोलती हूँ, लेकिन उसके बाद देखिए इट बिकेम अल्ट्रा न्यूक्लियर फैमिलीज। और अभी देखिए व्यवस्था ऐसी है कि 2 people have to work, the lady and the man have to work। तो बच्चों को देखिए सुपरविजन नहीं है। सो ना पेरेंट्स को देखिए जैसे वो लोग बूढ़े होते हैं तो उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, और वैसे भी बच्चों को देखिए दे आर द मोस्ट ट्रॉमेटाइज्ड। अब ये कोविड में देखिए
सबसे ज्यादा देखिए बच्चों का देखिए इट इज बीन अ प्रॉब्लम, क्योंकि बिकॉज बच्चे क्लासरूम एटमॉस्फेयर चला गया, स्कूल में जो थोड़ा सा मिसचिफ करते थे वो चला गया, घर में बैठे बैठे मम्मी बाजू बैठती है तो थोड़ा सा गपशप भी नहीं कर सकते बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। स्टडीज आर वेरी बोरिंग बिकॉज इट्स ऑनलाइन, बच्चों को थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, कहीं बाहर जाना नहीं है, सो यू कैन सी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, नो मेंटल एक्टिविटी। सो सबसे ज्यादा देखिए जो इफेक्ट हुए हैं इन दिस पैंडेमिक इट इज द चिल्ड्रन। और हर बार देखिए मैं ये बार बार मैं कहती हूँ इट्स अ लॉट ऑफ द पेरेंटिंग दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। पेरेंट्स देखिए 15 to 19 की उम्र में फ्रेंड्स होनी चाहिए, एंड नॉट एज अथॉरिटी फिगर्स। बच्चों को समझिए, उनकी अच्छा बुरा देखिए आप जरूर सोचते हैं, आई डोंट से नो, बट आई थिंक वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस बेटर। पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कहीं मुझे लगता है कि एज पेरेंट्स वी आर फेलिंग आवर चिल्ड्रन, एज एडल्ट्स एज अ सोसाइटी हम हमारे बच्चों को देखिए वी आर नॉट बीइंग फेयर और वी आर नॉट बीइंग बिहेविंग करेक्टली विद देम। मैम एक क्वेश्चन आया है कि डज एज इज ए एरिया दैट अफेक्ट मेल एंड फीमेल डिफरेंटली, कि हर एक पीरियड्स के लाइफ की हर एक पीरियड्स में मान लीजिए 10 इयर्स का लड़का लड़की या 25 इयर्स का लड़का लड़की, ये जो एज एज डिफरेंट डिफरेंट एज स्टेज में हम लोग जाते हैं लाइफ में, वो क्या डिफरेंटली मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता है? डेफिनेटली सर जी, क्योंकि देखिए 10 साल की उम्र में लड़का लड़की दे प्ले टुगेदर। यहाँ पर लड़की मेच्योर होती है, वहां पर इमीडिएटली रिस्ट्रिक्शन, लड़कों से बात नहीं करना चाहिए। और वहां से लेके देखिए जब दे बिकम एट मैरिजेबल एज कि भाई शादी करो, प्रेशर ऑफ गेटिंग मैरिड फॉर अ गर्ल, एंड फॉर अ बॉय प्रेशर ऑफ गेटिंग अ जॉब। उसके बाद देखिए 35 इयर्स में बच्चे होते हैं, वुमेन हैज गॉट एंटायर प्रॉब्लम। देखिए मेनार्की से लेके मेनोपॉज तक वुमेन को देखिए हार्मोनल इश्यूज होते हैं, सो वुमेन के देखिए टोटली अलग इश्यूज होते हैं। एंड मेन के देखिए अर्निंग का बोझ पड़ जाता है, फैमिली को देखने का बोझ पड़ जाता है। उस टाइम में देखिए पेरेंट्स भी बूढ़े हो जाते हैं तो केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके भी ज्यादा हो जाते हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज स्कूल्स आर वेरी एक्सपेंसिव। अभी हर चीज एक्सपेंसिव है। सो देखिए दैट कॉजेज एट द एज ऑफ 50 men are ready to retire। तो फाइनेंशियली क्या वो सिक्योर है कि नहीं, क्योंकि जो पीएफ ग्रेचुटी मिलती है वो तो बच्चों की शादियों में और बच्चों की पढ़ाई में निकल जाता है। सो रिटायरमेंट में देखिए द मैन हैज टू गो बैक टू वर्क, यू नो एट द एज ऑफ 60-70 ही स्टिल वर्किंग। एंड वुमेन का मेनोपॉज हो जाता है, एम्प्टी नेस्ट, जो नेस्ट जो था, जो बच्चे थे सारे के सारे उड़ गए और अपनी यू नो यूएस में या कहीं अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो देखिए एम्प्टी नेस्ट वुमेन को देखिए बहुत भारी पड़ जाता है, सो दे हैव ओल्ड एज डिप्रेशन, मेनोपॉजल डिप्रेशन। सो यू सी ईच एज में के जो जो एज पीरियड है वहां पर देखिए कैसा यू नो मेन एंड वुमेन सफर। डिप्रेशन का जो एक्सप्रेशन है मेन में अलग होती है और विमेन में अलग होती है। लाइकवाइज एंजाइटी अगर होती है तो मेन में अलग एक्सप्रेशन होती है और विमेन में अलग एक्सप्रेशन होती है, बिकॉज ऑफ दीज यू नो वेरी स्ट्रॉन्ग जो रोल डिफरेंस जो होती है। मैम लास्ट में हम लोग ये डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं कि देखिए सोसाइटी हमको और गवर्नमेंट सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर चलती है। अगर पेरेंटिंग ये ट्रायड बना जाए, ट्रायंगल बना जाए, तो हम पहले डिस्कशन करते हैं मेल फीमेल के बारे में। ये जो आज की जो टॉपिक था जेंडर इश्यूज इन मेंटल हेल्थ, मेल के लिए या मेन के लिए आपकी संदेश क्या रहेगी? सर मेन के लिए मैं एक ही कहती हूँ, देखिए ये कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, दैट यू नो वी शुड शेयर द केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर शेयर किया जाए तो आपका भी देखिए बोझ वो उठाएगी, आपकी जो पत्नी है या आपकी माता जी है वो उठाएंगी। सो आई थिंक शेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी ऐसा मत समझना कि मर्दों के लिए अलग लॉ है सोसाइटी में और लेडीज के लिए देखिए अलग लॉ है, ऐसे नहीं समझना चाहिए। वी आर ऑल इक्वल, सो इक्वालिटी एंड यू नो एंड लेस डिस्क्रिमिनेशन इज is what I am saying for men। फीमेल के लिए आपकी संदेश क्या रहेगी? सबसे बड़ी बात यह है कि केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एंड she has to be a good daughter, good sister, good girlfriend, good wife, good mother, good daughter-in-law। देखिए कितने रोल्स एक 100 साल की उम्र
में कितने रोल्स आपको प्ले करना पड़ता है। तो आई ओनली से वन थिंग कि भाई आप अपना सेल्फ केयर, वीमेन नेवर टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। वो ऑलवेज देखिए एंग्शियस होते हैं और अपने लिए 24 घंटे में 5 मिनट भी नहीं निकाल पाते हैं। सो प्लीज आप अपने लिए प्लीज केयर, क्योंकि आप हैं तो आपका घर है। प्लीज रिमेंबर यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, इन योर फैमिली। तो आप स्टे वेल हाइड्रेटेड, खाना अच्छा खाइए, ढंग से खाइए, हंसिए घंटे। ऑलवेज मैं कहती हूँ कि पेट भर के हंसिए आप। लाइफ इज डिफिकल्ट, किसी ने नहीं कहा कि लाइफ इज इजी, लेकिन डिफिकल्टी में भी आप हंसना सीखिए। एंड प्लीज डोंट फील कि भाई आप अकेले हैं लाइफ में। वी आर ऑल विद यू। एंड बस आप अपनी देखभाल कीजिए और उसके साथ साथ आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगा आपके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरीके से निभाने के लिए। एज ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हमारे भी बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, खासकर मेंटल हेल्थ को लेकर, क्योंकि हमारे देश में जो स्टिग्मा है, जो सोशल बिलीफ्स है, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के लिए आपकी संदेश क्या रहेगी? ये सबसे वास्ट एंड डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। लोग समझते हैं कि आजकल हर कोई देख के साइकोलॉजी लेते हैं, बट प्लीज डोंट टेक साइकोलॉजी टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए दूसरे साइकोलॉजिस्ट के सामने बैठना पड़ता है। एंड ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि किसी को हाथ नहीं है या नहीं तो पैर नहीं है, जिंदगी कट जाती है एंड दे कैन स्टिल वर्क। लेकिन किसी का देखिए दिमाग में अगर ठीक नहीं है तो सारी जिंदगी देखिए शून्य हो जाता है। सो यू आर occupying the greatest role in society. It doesn't pay much. It doesn't, like a surgeon will make much more money, or say a plastic surgeon or dermatologist, बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं वो लोग because of the sheer expertise of their job. हमारी जॉब में देखिए पैसे कम होते हैं, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सबसे बड़ा होता है। बिकॉज यू आर एक्चुअली, आप किसी को ऐसे सेव कर रहे हैं, आपके किसी को जिंदगी दे रहे हैं, आप किसी को एक लाइफ जीने का तरीका आप सिखा रहे हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। सो प्लीज कीप इट अप एंड नेवर थिंक कि आपका जॉब छोटा है। गवर्नमेंट सिस्टम के लिए कुछ बोल सकते हैं हम? सर जी, गवर्नमेंट सिस्टम में देखिए आई वुड ऑलवेज से कि प्राइमरी हेल्थ केयर को बढ़ाना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ केयर में अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए सिटीज में काफी लोग हैं। वी आर फाइन, हमारे सिटी में ही देखिए 80-90 साइकाट्रिस्ट है, जो सबका देखिए सम ऑफ देम गो टू द डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो। लेकिन प्राइमरी हेल्थ केयर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, हमारा जो सिटी में है हैदराबाद में, सबसे बड़ा मेंटल इंस्टीट्यूशन है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट, लेकिन वो बस नहीं हो रहा है। सो in primary health care we need to increase mental health awareness and mental health help, and ये चीज अगर गवर्नमेंट ने अगर थोड़ा सा if they are able to give focus, I think we'll be in a much better place. साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए दो जेंडर में, मेल या फीमेल में, who is more compact in decision making? So decision making देखिए, when it comes to family, sir, I definitely would believe that women are better decision makers. When it comes to finances, when it comes to work and all that, both are very good decision makers. So इसमें देखिए I would definitely say यहाँ पर देखिए it is definitely 100% equality, क्योंकि both of them are very well equipped to take the decision. बस women को देखिए चांस कम होती है, लोग डिसीजन लेने का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं देते हैं, या नहीं तो अपने ओपिनियन बोलने का या नहीं तो प्रकट करने का कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता है। सो दैट्स द रीजन व्हाई यहाँ पर भी देखिए डिस्क्रिमिनेशन होती है, बट एक्चुअली मेन एंड वीमेन आर वेरी मच द सेम। तो जाने कि आज के जो डिस्कशन रहा आपसे, उसका ये मतलब कि हमको सोशल स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है अवेयरनेस, इसका ऊपर काम करना पड़ेगा सोसाइटी के रूट लेवल पे। जो प्राइमरी हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिटी में जाएंगे तो साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हर कोई अवेलेबल है, लेकिन जो रूट लेवल है, जो रूरल एरिया है, उसमें पता भी नहीं है लोगों को मेंटल इलनेस भी होता है। जब सीवियर हो जाता है तब पता चलता है कि कुछ हुआ है, और कोई रेकमेंड कर देता है कि जाके आप दिखाइए, एमआरआई कीजिए। और ये तो और एक विडंबना की बात है कि और लोग मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तब भी उनको डिप्रेशन या एपिलेप्सी का मेडिसिन दिया जाता है, या एंजाइटी डिसऑर्डर का। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर जो चैनल है, जो साइकोलॉजिस्ट बैठे, काउंसलिंग बैठे या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बैठे, उनको बैठाना चाहिए, उनका जो अवेयरनेस है वो बढ़ाना चाहिए। ये रह सकता है आज की थीम की लास्ट जो मेजर पॉइंट्स है।
डेफिनेटली सर जी, दैट अवेयरनेस एंड इसके साथ साथ मैं हर यहाँ नागरिक को मैं कहती हूँ कि प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप अपना भी देखिए, दूसरों का देखते वक्त आप अपने आप को लापरवाही मत कीजिए, सो दैट व्हेन यू आर स्ट्रॉन्गर यू कैन डू अ लॉट मोर। एंड जैसे आपने कहा डॉक्टर साहब कि डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा, ऐसी चीजों पे देखिए ध्यान देना चाहिए। आप ऑलरेडी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यू आर स्प्रेडिंग लॉट ऑफ अवेयरनेस एंड दैट्स अ ग्रेट जॉब। काश अगर सब आपके जैसा, इफ यू आर लिटिल मोर सोशल माइंडेड, आई थिंक एवरी वन ऑफ अस कैन डू अ लॉट फॉर सोसाइटी। थैंक यू मैम, आपकी जो बिजी शेड्यूल से अब इतना वक्त हमारे लिए निकाले हैं, आपके लिए हम बहुत ही कृतज्ञ हैं, क्योंकि आप जैसे लोग रहेंगे तो सोसाइटी में, ये मेरा एक प्रयास था। लेकिन आप लोग जितने भी सारे जुड़ रहे, बहुत बहुत सेटिस्फेक्शन जो आप जो बोल रहे हैं, ये करने में इतना खुशी मिल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हर दिन ऐसा ऐसा कुछ अवेयरनेस के प्रोग्राम हम करते जाए और सोसाइटी को एटलीस्ट पर डे अगर एक भी आदमी के पास हमारा मैसेज पहुंच रहा है, वो हमारे लिए काफी है। क्योंकि बहुत बड़ा कंट्री है और बहुत चीज का इश्यू है, हम बहुत चीजों में लेक है। रातों रात हर चीज को सुधार नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो जरूर कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं है और हम हारने वाले से नहीं है। तो ये आपकी जो टाइम है और जो डिस्कशन आज है, वो बहुत सारा हमको प्रैक्टिकल टिप्स जरूर हमारे जो ऑडियंस है और बाद में ये जो सर्कुलेट होगा, बहुत सारा मैसेज मिलेगा जरूर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, वी आर वेरी मच ग्रेटफुल। तो आज की जो डिस्कशन था, आज की जो टॉपिक्स था, इससे ये तो हमको क्लियर हो चुका है कि हमारा सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो सोशल बिलीफ है या ट्रेडिशनल बिलीफ है या स्टिग्माज है, इसका ऊपर काम करना हमको बाकी है। क्योंकि हम मार्च में पहुंच चुके, हम 21st सेंचुरी में जी रहे, जो कि टेक्नोलॉजी का या डिजिटल का एज मानते हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। एक गर्ल चाइल्ड को बॉयज के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। पेरेंट्स लोग को अगर गर्ल चाइल्ड हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है, एक बॉय चाइल्ड हर कोई पेरेंट्स को चाहिए। अरे सिर्फ अगर बॉयज ही होंगे तो गर्ल्स अगर नहीं रहेंगे सोसाइटी में, या फीमेल ही नहीं रहेगा, तो सोसाइटी या क्रिएशन कैसे चलेगा? ये क्रिएशन का लॉ ही है, बैलेंस करना चाहिए। तो हमको बदलना है इंडिविजुअल लेवल पे, रूट लेवल पे, क्योंकि अगर आज नहीं बदलेंगे तो काल हमारे लिए बहुत भारी हो सकता है। इसलिए मैं हर वक्त ये बोलता हूं कि अपने नजरिए को एक बार बदल के देखो, क्योंकि जिंदगी का आपकी जो नजरा है वो जरूर बदल जाएगी। इसी नोट्स के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।